questions from what we discussed earlier before we kick off? Okay. So in case no, so I think we were discussing about equity research. And हमने ये डिस्कस कर लिया था सेल्स ट्रेडिंग वाला. So did we discuss the types of reports, or we have to start from this section? It was done. Done now. अच्छा ये sorry मुझे याद नहीं है because I think it's a couple of weeks back when we had a last discussion. So on this presentation which I've given you, यहाँ पे Colgate Palmolive का एक sample दे रखा है very similar to जो presentation आपको बनाने को बोला है. So for example उनका oral care market share में उनका क्या composition है, because Colgate Palmolive's the main product, a main business into oral care, which is toothpaste and toothbrush. तो वो देखिए product composition दे रखा है, ठीक है, in terms of revenue share. I'm not saying कि आपको ऐसा ही template बनाना है अपने presentations के लिए, but it is just it gives you a flavor in terms of this could be one of the ways जो आपको presentation बनाने के लिए बोला है, आप उस data को इस तरीके से present कर सकते हैं. Okay, then peer analysis है कि जो Colgate, so ये तो Colgate के main products हो गए, and then you have in a similar segment or for a similar products Colgate vis-a-vis other big players in the industry, be it Dabur, be it HUL and so on. So यहाँ पे आपको dominance पता लगता है Colgate का, how dominant Colgate into this product segment in the industry. ठीक है, then not necessarily आप ग्राफ से ही बनाएं, आप एक्सेल में सिंपल नंबर्स डाल के ग्रोथ पैटर्न को दिखा सकते हैं. इफ यू कंफर्टेबल आप ग्राफ से भी दिखा सकते हैं. दिस ग्रोथ कुड बी इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ मार्केट शेयर, इट कुड बी इन टर्म्स ऑफ मार्जिन्स. अगेन you need to choose that which of the variables according to you would be the best variable to show the growth in case there's a growth in the company. Okay, low per capita consumption. This is about that in India, the usage of the oral products or the products like toothbrush, toothpaste, उनका consumption कितना कम है per capita vis-a-vis other countries. Hence, in terms of growth, potential कितना है, ठीक है. So अगर आप ध्यान से देखोगे, this is हमने EIC किया था, इकोनॉमी इंडस्ट्री कंपनी. ये जो स्लाइड देखोगे आप, it is industry with some linkage of economy.
ये सेल्स ब्रेकअप वगैरह तो ठीक है। ड्राइविंग फैक्टर्स, ठीक है, आपकी ग्रोथ, फ्यूचर ग्रोथ कौन कौन से वेरिएबल से ड्राइव होगी। अब इसके लिए आपको मैंने स्वॉट बोला है, पेस्टल बोला है, ठीक है। तो अगेन एज वी डिस्कस अर्लियर, रिसर्च रिपोर्ट में वो टूल्स के हेडिंग्स नहीं होते हैं, स्वॉट पेस्टल ऐसे हेडिंग नहीं होगा, बट इट ब्रिंग्स आउट द सेम एसेंस, कम्स आउट टू बी प्रीटी सेम, ठीक है। अगर आप मार्जिन्स रेशियोज में जा रहे हैं तो ये हमने अलग से डिस्कस किया है, ठीक है, उसका आप एनालिसिस कर सकते हैं। नॉट नेसेसरी आपको ग्राफ के थ्रू करना है, प्लीज remember it's not necessary आपको ग्राफ के थ्रू करना है। as I mentioned earlier, what is important for you at this step is about analysis, not in terms of how good it looks. So it's not about looks right now, it's about the content. Once you build the content, then the next level comes out in terms of how do you bring in terms of presentation, and that thing will take time. Every organization which you will join would have different templates, would have different softwares, would have different junior resources to support you from formatting perspective. So वो सब वहाँ टेक केयर हो जाता है. Yes, Colgate is a company, Yeah, or it's a correct. Colgate Palmolive Yeah, Colgate Palmolive is an entity. company. Colgate is not a company. Colgate Palmolive is a company, and Colgate is one of the brand of the same company. We are taking care of this analysis brand or the company. Company. If we are going for Colgate, we cannot get the standalone for this product Colgate. थोड़ा मुश्किल है दीपक, बिकॉज पब्लिक डोमेन पे ब्रेकअप इतना आसानी से अवेलेबल नहीं है. सो अगेन इट डिपेंड्स, जो डेटाबेस आप किस डेटाबेस से एक्सेस करें डेटा. कुछ पेड डेटाबेसेस में हाँ वो ब्रेकअप अवेलेबल, बिकॉज कोलगेट इज अ बिग ब्रांड, देयर इज लॉट ऑफ रिसर्च ऑलरेडी बीन डन फॉर द कोलगेट इन द पास्ट. बट अगर आप गूगल के थ्रू करोगे तो शायद बहुत लाइकली है कि वो शायद ब्रेकअप हर इंफॉर्मेशन का उतना एक्यूरेट या उतना डेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिले फॉर ओनली दिस ब्रांड in a standalone basis. We can get that in their financials now. It's a listed company in Indian BSE and NSE, na? Correct, but हर it is not a mandatory for a company. जैसे मारुति है या कोई भी कंपनी है, तो मारुति अगर है तो उसके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है कि वो अपना सियाज है, बेलेनो है, वैगनआर है, ये सब इनके ब्रांड्स हैं. उनका सबका अलग अलग हर डेटा पॉइंट दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते. सो दैट्स व्हाई आई सेड कि जरूरी नहीं है सब कुछ मिल जाए जो आपके लिए गुड इनफ हो टू से कि हाँ मैं कोलगेट का स्टैंड अलोन का एनालिसिस कर पाऊँ. हाँ कुछ इन्फॉर्मेशन हो सकता है मिल जाए, बट डेफिनेटली जो मैंने पेड सॉफ्टवेयर देखे उस पे कोलगेट का काफी डिसेंट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है on a standalone basis as well, because it's a relatively very old brand and a lot of people have already done some research in the past. So what happens, these research in some shape and form gets into these platforms. Deepak, is that clear? So that's what I was from where this data has been come up. I think these are very old slides. They are comparing it. This जो स्क्रीन पे आ रहा है this is financial year 10-11 का डेटा है कुछ. हाँ ये तो एक ऐसे टेम्पलेट है पुराना, आपको दिखाने के लिए कि प्रेजेंटेशन कैसे बन सकता है. ऑफ कोर्स दिस इज वेरी आउटडेटेड डेटा. This will not get populated or updated by this जो भी कंटेंट मेंटेन करता है उन्होंने. तो हम इसको फ्रॉम एन एनालिसिस पर्सपेक्टिव नहीं देख रहे हैं, ठीक है. दी ऑब्जेक्टिव, सॉरी, फर्स्ट कुछ मैसेज आया, ही कांट नो ऑडियो वॉइस रिसीविंग. सो आप लोग मेरे को सब सुन पा रहे हैं, करेक्ट?
Yeah, that's why we are replying. Yes, we can able to hear you. फर्स्ट फ्लोर के एंड पे कुछ इशू होगा. So the objective of this is not दीपक कि हम इसको एनालाइज करने के लिए करें, बिकॉज वो तो रेलेवेंस पे डेटा है ही नहीं, इतना पुराना डेटा है. the underlying principle is कि आपको जो प्रेजेंटेशन बनाना है, आपको एक रेडीली टेम्पलेट मिल जाए अगर जरूरत है तो. अदरवाइज यू कैन पिक एंड चूज इसमें से कुछ चाहिए, विद द केवियट this template is being prepared by a more team who has a lot of formatting resources or support from the junior staff. ठीक है, which means इसमें बहुत सारा ऐसा फॉर्मेटिंग पीसेस है जो मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगा कि अपने प्रेजेंटेशन में अवॉइड करना, या कर सकते हो, बट अगर आपको लगे कि बहुत ज्यादा टाइम लगा के वो फॉर्मेटिंग फॉर्म में आना, तो इट्स नॉट वर्थ इट. उससे ज्यादा टाइम आप अपने एनालिसिस या डेटा गैदरिंग पर. जैसे आप जो स्लाइड देख रहे हो स्क्रीन पे, इट्स नॉट प्रीटी. हमने जो चार्टिंग करी, हमने जो एक्सेल के सेशंस करते उसमें हमने चार्ट्स जो करे, उसमें ये बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं, हमने चार्ट्स बनाए. बट डिपेंड करता है किसने कितनी प्रैक्टिस करी है. अगर आपने रेगुलरली उस एक्सेल के प्रैक्टिस करी है चार्ट्स बनाने की, तो अब ये बहुत आसानी से बना सकते हो. बट अगर somebody who has not done that practice, अब वो 2 घंटे लगा दे सिर्फ एक चार्ट बनाने में, सो उसका शायद इतना इम्पैक्ट नहीं है. Yes, you're right, this is outdated data, but intent is not to analyze the data. ठीक है, फाइनेंशियल मॉडल जो हमने एक्सेल बनाया है, आप उसको अटैच कर सकते हैं, उसके स्नैपशॉट्स लगा सकते हैं. ये जो क्वार्टरली अपडेट, जैसे मैंने आपको अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स बताई थी, सो जो हमने डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिपोर्ट, ये वाला. ठीक है, तो ये मेंटेनेंस रिसर्च रिपोर्ट है. मेंटेनेंस रिसर्च रिपोर्ट क्या करता है, जब आपका क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं या एनुअल रिजल्ट्स आते हैं, तो आप अपडेट करते हो. तो वो जो सेक्शन था वो यही था. So this is quarterly update where you bring your quarterly results vis-a-vis your previous quarter and then show the comparison, and उसके ऊपर आपका क्या अपडेट है वो आप प्रेजेंट करते हो. ठीक है, फॉर योर प्रेजेंटेशन, suppose if you're making a presentation for a particular company, you might add a latest quarter result. So अभी आप लोग के पास जो क्वार्टर का रिजल्ट होगा, आई डोंट थिंक क्वार्टर एंडिंग मार्च का डेटा आपको मिल जाएगा, वेरी अनलाइकली. सो फॉर द क्वार्टर एंडिंग दिसंबर शुड बी अवेलेबल. अगर आप चाहो तो आप उस लास्ट क्वार्टर का भी बता सकते हो कि लास्ट क्वार्टर में कंपनी ने परफॉर्म किया है, and what are the primary variables, negative or positive drivers. For most of the companies, one of the common driver could be this pandemic, because अगर आप क्वार्टर एंडिंग दिसंबर एक्सप्लेन करोगे तो उसमें of course depending upon the company and the segment that you selected, there might be some positive or negative impact because of this pandemic. So this could be one of the way that you can bring your analysis towards the conclusion by showing कि last आपने कंपनी के बारे में बता दिया, कंपनी का पूरा इकोनॉमी ऐसी समझा दिया, and then towards the end you are explaining okay लेटेस्ट क्वार्टर के क्या रिजल्ट्स हैं या उसके क्या समरी है. तो वैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हो. एनी डाउट? ठीक है, तो ये मैंने आपको कोलगेट का जो टेम्पलेट है, हाउ डू यू यूज दिस फॉर योर प्रेजेंटेशन, वो थोड़ा एक्सप्लेन किया है. ठीक है,
और कोई स्पेसिफिक डाउट है आप लोग को आपके प्रेजेंटेशन के लिए जितना आपने बनाया है, तो कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। Is it mandatory in BSE that a company in India should have at least Indian stake of more than 50% to be listed in BSE or the stock exchange? So it depends on which sector we are looking at. What are the regulations around this? So for example, insurance, yes, there is a आप नहीं, वो BSc की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको इंश्योरेंस का लाइसेंस ही नहीं मिलेगा इंडिया में, ठीक है। इसलिए आप देखोगे Okay, टाटा on AIG, आप कोई FDI भी point, इंश्योरेंस का, सॉरी, FDI point, no? Foreign direct investment, करेक्ट 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 करेक्ट। given by तो government. वो नॉर्म्स एप्लीकेबल होते हैं। इट इज नॉट दैट BSc डिसाइड करता है कि मैं इंडियन कंपनी को लिस्ट करूंगा या नॉन इंडियन कंपनी को लिस्ट नहीं करूंगा। इट इज either the FDI norms or the licensing norms of that particular segment or that particular industry. जैसे बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर में 100% अलाउड है, तो you will see a lot of foreign banks, ठीक है, who does not have any Indian equity. The 100% equity is by the foreign parent companies, वो इंडिया में लिस्टेड है। वीजा if you look at the insurance companies, वो नहीं है। ऑटोमोबाइल कंपनी पहले टाटा, सॉरी, मारुति एंड सुजुकी, वो पहले अलाउड नहीं था, दैट इज व्हाई सुजुकी एंड मारुति केम टुगेदर, अब अलाउड है, करेक्ट। सो it would be dependent on the respective industry FDI norms and the licensing, if any. For example, ऑटोमोबाइल में कोई लाइसेंसिंग की जरूरत नहीं है, बट इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, या जो ऐसे अदर फाइनेंशियल सर्विसेज है, उसमें आपको इंश्योरेंस लाइसेंस की जरूरत है। तो उन कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि whether you need a local partner, if yes, what is the minimum percentage which needs a contribution from the local partner. हाँ जी, कुछ और कोई डाउट प्रेजेंटेशन में कुछ पूछना है फ्रॉम जो कोलगेट का हमने टेम्पलेट देखा? हेलो सर, प्रेजेंटेशन एंड ये पिच बुक में क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है। पिच बुक और इक्विटी रिसर्च में डिफरेंस होता है। तो इक्विटी रिसर्च होती है जो आप एक वर्ड डॉक्यूमेंट में सबमिट करते हो, काइंड ऑफ एन रिपोर्ट, ठीक है। और उसी रिपोर्ट का जब एक छोटा सा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाते हो फॉर 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, हाफ एन आवर प्रेजेंटेशन, उसको पिच बुक बोलते हैं। So pitch book is a summary of a research report, and then pitch book is used for presentation to the senior management when you get limited time. तो सर, हमने जो प्रेजेंटेशन बनाया है तो इक्विटी रिसर्च जो किया है, तो उसमें अभी हम लोग ये फोरकास्टिंग एंड वैल्यूएशन का भी पार्ट डालेंगे। अगर आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अगर आपके पास टाइम है, आपको डेटा मिल रहा है, तो आप डाल सकते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है या डेटा नहीं है तो आप नहीं डालना चाहो तो नहीं डाल सकते। मैंने आपको कम से कम 3 बार ये लिखवा दिया है कि मिनिमम पॉइंट्स क्या चाहिए, ठीक है। और वो मिनिमम पॉइंट्स जब में, सुन लो पूरी बात, ठीक है, वो मिनिमम पॉइंट्स में वो आपको पहले एटलीस्ट कवर करने हैं। उसके ओवर एंड अबव बहुत सारी चीजें डाली जा सकती हैं जो आपको अलग से रिसर्च, इक्विटी रिसर्च वाली जो क्लासेस हुई पीछे, उसमें बताया गया। अब अगर आप उसमें से कुछ एक्स्ट्रा डालना चाहते हो, आपके पास टाइम है और डेटा है, देखो डेटा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने जो कंपनी सेलेक्ट करी है उसमें हो सकता है आपको वो डेटा ही ना मिल रहा हो, तो आप नहीं डाल पाओगे। तो टाइम और डेटा का कॉम्बिनेशन करके जो आप एक्स्ट्रा चीजें डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। बट सर, ये इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से अगर वो फोरकास्टिंग एंड वैल्यूएशन के बारे में पूछा जाए तो अगर आपके पास टाइम है और डेटा है तो डालो, नहीं है तो आप उसको ये बोल सकते हो कि मेरे को डेटा नहीं मिला, ठीक है। वो आपको ये नहीं बोलेगा कि इसका वैल्यूएशन करके बताओ, वो आपको वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट पूछेगा,
आपको ये पूछ, ऐसा नहीं होता कि इक्विटी रिसर्च में हमेशा वैल्यूएशन होता ही होता है। आपको मैंने रिसर्च रिपोर्ट दिखाई, आप वहाँ गूगल कर लो रिसर्च रिपोर्ट्स, अगर आपकी आपकी जो एलएमएस पोर्टल है उस पर भी अवेलेबल है, ठीक है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन, करेक्ट। आपको क्या लगता है हर एक रिसर्च एनालिस्ट उतना टाइम लगाएगा कि वैल्यूएशन भी करे? तो इट्स अ कॉम्बिनेशन डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट, कितना टाइम देता है और कितनी फीस देता है। आपके पास टाइम है करने के लिए तो आप कर लीजिए। आपको मॉडल बना के दिया है, आपको कॉन्सेप्ट कराए हैं, ठीक है। आप उसमें फोरकास्टिंग करना चाहते हैं, फोरकास्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आपको नहीं करना है, नहीं कर सकते हैं, वो तो डिसीजन आपको लेना है फजलू। यस सर। अच्छा सर, ये नंबर ऑफ स्टैंडिंग शेयर्स का जो फोरकास्टिंग वो किस तरह से करेंगे हम? जैसे करंट ईयर का पता इसका है, प्रीवियस ईयर का, बट सॉरी दोबारा नेक्स्ट बोलो। ईयर का ये नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स शेयर्स का, इक्विटी शेयर्स का फोरकास्टिंग कैसे करेंगे? अच्छा, हमने केपेक्स जैसे कर फोरकास्टिंग किया है। यस, क्या होता है केपेक्स फोरकास्टिंग? कैपेक्स फोरकास्टिंग होता है मेंटेनेंस कैपेक्स प्लस ग्रोथ कैपेक्स। हम्म, कैसे करते हैं वो, हमने जो किया था? मेंटेनेंस कैपेक्स डिप्रिसिएशन हो गया, ग्रोथ कैपेक्स हो गया सेल्स डिवाइडेड बाय चेंज इन एफएटीआर। हाँ ठीक है, उससे आता क्या है? ग्रोथ केपेक्स से आता क्या है? ग्रोथ कैपेक्स से सर, ठीक है कैपेक्स फजलू। की बोलिए। जो सर ग्रोथ उसका जो, केपेक्स से, ग्रोथ केपेक्स हाँ देखो, यही यही सब रीजन है आप ना स्टक हो रहे हैं, बिकॉज फॉर्मूला याद करना इज नॉट ओनली रिक्वायरमेंट, उसके आगे कॉन्सेप्ट याद रखना वो भी इम्पोर्टेंट है। ग्रोथ केपेक्स से आता है, जो आपने फॉर्मूला बोला वो सही है, बट वो फॉर्मूला देता क्या है वो तो पता होना चाहिए। ग्रोथ केपेक्स से आता है कि हमें और कितना पैसा लगाना है कंपनी में, या नेक्स्ट ईयर कितना केपेक्स लगाना है कंपनी को ग्रो करने के लिए। सो लेट्स अज्यूम दैट कम्स आउट टू बी 100 करोड़। नाउ व्हाट डज दैट मीन? कि मेरे को अगले साल कंपनी में 100 करोड़ केपेक्स लगाना है। यहां तक क्लियर है फजलू? यस सर। ठीक है। अब मेरे को अगर 100 करोड़ अगले साल लगाना है तो कहाँ से होगा अरेंज? हो या तो डेट से आएगा या इक्विटी से आएगा, यही दो मेन सोर्सेज है फंडिंग अरेंज करने के। यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। ठीक है। अब आपको ये डिसाइड करना है, आपको मतलब एज ए एनालिस्ट आपको कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो देख के ये समझ आता है कि कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो अभी ऑलरेडी बॉर्डर लाइन पर है। बॉर्डर लाइन का मतलब क्या हुआ कि कंपनी ऑलरेडी हायर डेट इक्विटी रेशियो पे बैठी है, और कंपनी आगे जाके इस डेट को और रेज नहीं, इंक्रीज नहीं कर पाएगी। वो एक वन सिनेरियो हो सकता है। यस सर। तो उस सिनेरियो में कंपनी क्या डिसीजन लेगी? बहुत लाइकली कंपनी विल गो फॉर आईपीओ, सॉरी एफपीओ, यानी इक्विटी के लिए यस सर। जाएगी। यानी वो यस सर। सौ यस सर। करोड़ को फंडिंग जो करनी है इक्विटी से करनी पड़ेगी। यस सर। फेस वैल्यू पता होता है शेयर का क्या है, यस सर। तो 100 करोड़ डिवाइड बाय फेस वैल्यू विल गिव यू नंबर ऑफ न्यू शेयर्स। यस सर। नंबर ऑफ न्यू शेयर्स में पुराने ओल्ड शेयर ऐड करोगे तो नेक्स्ट ईयर आउटस्टैंडिंग शेयर्स का फोरकास्ट हो गया। यस सर। यस सर। कोई डाउट? नो सर। ठीक है। और सर ये किसी कंपनी कंपनी का जो है कॉस्ट ऑफ इक्विटी डायरेक्ट दिया नहीं रहता, जैसे बीटा रहता है, वैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी नहीं दिया रहता है। दिया रहता है, बट आप मान के चलो नहीं दिया रहता है, बिकॉज वो दिया रहता है तो काफी रिसर्च करने से मिलता है। बट आपको जो मैंने फॉर्मूला कराया कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करने का, आप वो यूज करो। बीटा आपको रेडिली मिल जाएगा, बाकी सब चीजों से यूज करके कैलकुलेट करो। हाँ जी, एनीथिंग एल्स? Any other question from a presentation perspective? Regarding the explanation of financials,
like I'm facing issues. I'm not very comfortable like explaining the ratios. क्योंकि अभी जैसे we talked about debt equity ratio, तो उसमें तो हम कंपनी का रिलेट कर सकते हैं. द मोस्टली इंफॉर्मेशन वुड बी अवेलेबल कि इस ना एक्विजिशन करना है या दे वांट टू एक्सपैंड द कैपेसिटी. बट वो डेट के लिए जाएंगे या इक्विटी के लिए, या उनकी लिमिट कितनी है डेट की, ये इंफॉर्मेशन मतलब ये हम कैसे जज करें? ये इंफॉर्मेशन एक इतनी आसानी से नहीं होती है. तो फॉर एग्जांपल जैसे कौन से सेक्टर है आपका या कौन सी कंपनी है, उसी का एग्जांपल से समझाता हूँ. सीक्वेंस साइंटिफिक. सॉरी, सीक्वेंस साइंटिफिक फार्मा कंपनी, एनिमल फार्मा कंपनी. जो फार्मा कंपनी है, ठीक है. हाँ सो जी. व्हाट वी डू, वी लुक एट सम ऑफ द फार्मा कंपनी जो पीयर्स होते हैं, ठीक है. सो लेट्स से वी सेलेक्ट 4 कंपनीज. वो 4 कंपनी का एवरेज डेट इक्विटी क्या चल रहा है, यानी उस इंडस्ट्री में उतना डेट इक्विटी का एवरेज चलता है. So suppose that comes out to be, let's assume 2/1. I'm hypothetically for sake of simplicity and discussion. और आपकी कंपनी ऑलरेडी 1/1 पे है, तो यानी कंपनी ऑलरेडी लेस देन है जो जनरली इंडस्ट्री में एवरेज चल रहा है. बट ये इतना आसान है नहीं, आपको उन 4-5 पीयर कंपनी का निकाल के एवरेज करना पड़ेगा. इसलिए मैंने कहा कि इतना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है क्योंकि आपको डेटा निकालना पड़ेगा. दूसरा आसान तरीका होता है कि आपको कोई इंडस्ट्री की रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं. सॉरी, जस्ट गिव मी अ सेकंड. सॉरी. सो वो इंडस्ट्री की जो रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं, उसका आपको देखो एक्सेस नहीं होगा बिकॉज ये जनरली पेड रिपोर्ट्स होती हैं. उसमें ये ऑलरेडी कैलकुलेट करके भी मिल जाता है. सो दीज आर द 2 ways that we use to arrive at an industry average for ratios. मतलब थोड़ा यस, मतलब वही थोड़ा सा ना इशू आ रहा है कि इनको कैसे एक्सप्लेन करें. जैसे हमने कंपनी के बारे में इतना ज्यादा हो गया ना नॉलेज ऑफ, मतलब कि जैसे ये ROC अच्छी बात है, है, खराब बात है. लाइक ये नेट अच्छी डेट. बात है कि खराब बात है. बहुत अच्छी बात है. आई एम वेरी ग्रेटफुल. नो नो नो, आई एम वेरी ग्रेटफुल दैट यू आप ये गेव अस. सोचो, आप ये, मैं आपको देखो कॉन्टेक्स्ट समझाता हूँ. आप ये सोचो, अभी आपके पास सिर्फ गूगल है which only has free and very limited information. You agree? ट्रू. Let's assume a research analyst who has access to 3 to 5 paid databases जहां पे ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो गूगल पे अवेलेबल नहीं होती. सोचो उनकी जो पास जो इंफॉर्मेशन एक्सेस है वो आपसे 10 टाइम्स बढ़ जाता है. इसलिए That's मैं what आपको I'm ना वो जो saying. I have so many questions, like you were asking questions, but those questions like unlimited कि इनकी जो information है, they keep on pouring. कि कंपनी की information endless है, I think. तो रिसर्चर जो है वो कितने बार अपडेट करेगा, लाइक मेंटेनेंस रिपोर्ट बार बार पब्लिश करनी पड़ेगी कंटिन्यूअस. या? कंटिन्यूअस. हाँ, और हमें मोर देन अ मंथ हो गया है कि वी आर स्टॉक्स हैं, रिसर्चिंग. कुछ स्टॉक्स हैं लास्ट 10 साल से मैं अपडेट कर रहा हूँ, ट्रैक कर रहा हूँ. 10 साल हो गए. सो यही तो रोल है. करेक्ट. आप if you're And a this is parent to a quite an child, interesting if you're a thing. parent Yes. if you're a parent to a child, आप मुझे बताओ एज अ मदर, एज अ फादर, what should be the age where a parent should stop caring for his or her child? बताओ. There can never be any age. Parents. करेक्ट. सेम चीज है ना. जो आप Like, जिस कंपनी को आप पिक करते हो रिसर्च करने के लिए, वो आपका चाइल्ड बन जाता है. एवरी इन्वेस्टर, एवरी क्लाइंट, योर मैनेजमेंट विल लुक अप टू यू कि भाई इसके बारे में तेरे को सबसे ज्यादा और तेरे को सबसे पहले पता होना चाहिए. दैट इज द वे द इंडस्ट्री एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. तब उस रिसर्च एनालिस्ट का वैल्यू है. सो तो आपका पॉइंट है कि मैं रेगुलरली कब तक अपडेट करते जाऊंगी. द आंसर इज इन रियल लाइफ ये रेगुलरली होता है. बट अगर आप रियल लाइफ को हटा दे और आप सिर्फ इस प्रोग्राम और प्रेजेंटेशन के लिए पूछ रहे हैं, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू, आप एक कट ऑफ लो. फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च. तो आप जो भी होगी, आपको प्रेजेंटेशन अभी कुछ दिनों में जब भी आपका शेड्यूलिंग होगा, जब करना होगा, तो आप 15 अप्रैल, 10 अप्रैल, 31 मार्च से कट ऑफ ले सकते हो कि मैं इस दिन तक का डेटा ले रही हूँ.
सो दैट आप प्रेजेंटेशन बनाना शुरू करो। उसके बाद जो न्यूज या अपडेट आ रहे हैं आप उसको हटा सकते हो और अपने प्रेजेंटेशन में एक डिस्क्लेमर डाल सकते हो, दिस प्रेजेंटेशन इज बेसिस द डेटा अप टू सो एंड सो डेट, जिससे आपको बार बार जाके स्लाइड्स चेंज ना करना पड़े। अगर आपका ये कंसर्न है कि सर मैं कुछ बनाती हूँ और कुछ नया न्यूज आ जाता है तो मुझे बार बार जाके चेंज करना पड़ता है, इज दैट व्हाट योर No, कंसर्न? not a concern for me as of now because अभी तो हम सीख रहे हैं, तो that is not an issue for now, but yeah, what you are saying I'll take a note. मेरा मतलब रियल मेन लाइफ में आपको कंसर्न। बताऊं, कभी कभी ऐसा भी हुआ है, कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि सपोज हमारा आज आफ्टरनून में या आज इवनिंग में क्लाइंट के साथ प्रेजेंटेशन है, हम कल ऑफिस बिफोर वी लेफ्ट फ्रॉम द ऑफिस वी मेड आवर प्रेजेंटेशन, वी फाइनलाइज आवर प्रेजेंटेशन एंड देन ओवर द नाइट कुछ कुछ ग्लोबल इवेंट हो गया, कुछ न्यूज आ गए एंड बिफोर वी हैव टू प्रेजेंट वी आर मेकिंग द चेंजेस टू द प्रेजेंटेशन। सो इट्स अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी इन रियल लाइफ। Yeah. अच्छा, like if we talk about explaining ratios, तो for example if it is net debt to EBITDA, तो अगर वो कंपनी का फॉलोइंग ईयर्स में डाउन हो रहा है, मतलब कम होता जा रहा है, तो वो हमने ग्राफ में शो कर दिया, और इसके अलावा हम एक्सप्लेन क्या कर सकते हैं, रीजन वो क्यों हो रहा है, क्या क्या हो सकता है? क्यों हो रहा है वो? क्या वो कंपनी स्पेसिफिक इशू है कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक इशू है? जैसे कि टूरिज्म इंडस्ट्री का लास्ट ईयर में आप देखोगे कोई भी कंपनी आप पिक कर लो उसका डेटा नीचे गया है, एयरलाइंस नीचे गए। तो अब लेट्स जो मैंने किसी पर्टिकुलर कंपनी का करा, ठीक है, और मैं देख रहा हूँ उसका सेल्स नीचे जा रहा है, मार्जिन नीचे जा रहे हैं या बिटा नीचे जा रहा है, और मैं देख रहा हूँ उस इंडस्ट्री में बाकी पीयर्स का भी वो नीचे जा रहा है, तो यानी इंडस्ट्री लेवल इशू है। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे पेंडेमिक है, सो टूरिज्म एंड जो इस entertainment, these are the most impacted industries of the segments, इनको सबसे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा है on नेगेटिव साइड, ठीक है। तो अब मान लो कि आप ही के कंपनी का डाउनवर्ड ट्रेंड है बट बाकी जो पीयर्स हैं उनका स्टैटिक है या ऊपर जा रहा है, तो कंपनी में कुछ इशू है। फिर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, डेट वो निकालना पड़ेगा, भैया क्या ऐसा कंपनी में हो रहा है कि इसी कंपनी का नीचे जा रहा है बाकी कंपनी का ठीक ठाक। दैट इज व्हाट द एनालिस्ट is expected to bring out, and then if analyst comes out and say ये कंपनी का नीचे जा रहा है बिकॉज ऑफ एबीसी रीजन, बाकी प्लेयर्स का ठीक ठाक है और कंपनी को ये गड़बड़ कंपनी कर रही है, अब वो पेस्टल है, स्वॉट है, कहीं ना कहीं फॉल करेगा। वो स्ट्रेंथ हो सकता है, टेक्नोलॉजी इशू हो सकता है, पॉलिटिकल इशू हो सकता है, इकोनॉमिक इशू हो सकता है, वो पेस्टल में स्वॉट में कहीं ना कहीं फॉल करेगा। पारुल, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? ओके, ठीक है। पारुल सर, डज इट आंसर योर क्वेश्चन? हाँ जी, यस। तो इन द प्रेजेंटेशन और पिच बुक वी कैन जस्ट show the graph and explain orally, that हाँ, can be. अगर आप ग्राफ नहीं बनाना चाहते या आपको लग रहा है ग्राफ बनाने में बहुत टाइम लग रहा है तो आप बिना ग्राफ के भी समझा सकते हो। देखिए, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू कि डोंट वेस्ट टाइम on the formatting too much. Focus more on the content and the analysis. आपके पास उसके बाद टाइम बचे और आपके कंफर्ट में हो तो ग्राफ, चार्ट, पिक्चर्स लगाने पे टाइम वेस्ट करना, अदरवाइज फोकस ऑन द कंटेंट। Your priority should be content and then the charts or the graphs or the pictures, not the vice versa. हाँ जी। अच्छा, एंड फॉर द कंक्लूजन पार्ट फॉर अस एज ऑफ नाउ, तो इसमें कोई लिमिट या कोई फॉर्मेट तो नहीं होगा कि जैसे हमें फाइनेंशियल्स का कंक्लूजन करना है और कंपनी का ओवरऑल, मतलब एनीथिंग यू आर एक्सपेक्टिंग, या टोटली हम जैसे मैंने करा है कि पॉइंटर्स मैंने लिखे हैं, बड़े पॉइंटर्स बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो इफ मतलब आई विल एक्सप्लेन दैट आल्सो, बट
Any expectations I want to ask? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो मिनिमम पॉइंट्स बताए हैं प्रेजेंटेशन में होने चाहिए और एक टाइम लिमिट आपको बताई है, उस को आप यूज करो टू फाइनलाइज योर प्रेजेंटेशन। जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया वो आप कंक्लूजन की तरह यूज कर सकते हो। जनरली हम किसी में वो जनरली यूज करते हैं व्हेन वी मेक प्रेजेंटेशन, स्पेशली टू लोकल इन्वेस्टर्स। ग्लोबल इन्वेस्टर का थोड़ा अलग स्टाइल होता है कंक्लूजन करने का, बट जो लोकल इन्वेस्टर्स होते हैं जनरली द वे वी कंक्लूड कि कंपनी के बारे में सब कुछ बता दिया, एंड देन जो लेटेस्ट क्वार्टर होता है उसका रिजल्ट का एक समरी एक स्लाइड में या 2 स्लाइड में कवर करते हैं टू से, क्योंकि ये कंपनी है बट रिसेंटली कंपनी की ये हालत है, रिसेंटली कंपनी का ये रिजल्ट आया। सो that is the way we try and conclude, and उसके बाद we bring the overall conclusion to say कि हाँ हमारे हिसाब से कंपनी का क्या हालत है, या कंपनी है would be one of those स्टॉक जिस पे आप खरीदना चाहते हो या आपको अवॉइड करना चाहिए। इस तरीके से आप कंक्लूजन की तरफ जा सकते हो if that helps. Okay. I have a question. हाँ देखो, Hello. You're saying that the data जो हमको मिलता है, information paid जो भी sources है उससे जो information मिलता है, give me an example that what different information a person who has that in the paid information and it's not available in financials aspects and all that for the industry, like any of the industry, if you have encountered such जैसे difference. फार्मा के एग्जांपल लेते हैं जो पारुल ने बात किया अभी। फार्मा कंपनी में आपको इंडस्ट्री लेवल पे ये जानना है कि क्या डेट इक्विटी रेशियो है। आप ये गूगल से निकालना, गूगल से आपको इसलिए मिल जाएगा क्योंकि किसी और रिसर्च रिपोर्ट ने गूगल पे वो डाल दिया हो, ठीक है, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। दूसरा वो हो सकता है आपको मिले फाइनेंशियल्स में अवेलेबल होगा, फाइनेंशियल्स में अवेलेबल होगा, सन फार्मा या फाइजर या रैनबैक्सी के उसमें अवेलेबल होगा। And I have not seen that. These financials I've seen, for example, for other financials like Bajaj Auto and TVS Motors. As a research analyst, I should believe that data. बजाज वाला जब डालेगा, देखो समझने की कोशिश करो ना दीपक, बजाज ऑटो जब डालेगा पहली बात तो वो अपना रेट डालेगा। अब जो इंडस्ट्री का उसने एवरेज डाला भी है, वो इंडस्ट्री का एवरेज हो सकता है बायस डेटा डालने की कोशिश करे, यानी वो इस तरीका डेटा डालने की कोशिश करे जो उसकी कंपनी को फाइनेंशियल रिपोर्ट में तो होगी ना कि वो बोरो कितना का रखा है, वो फ्लॉ थोड़ी कर सकता है उसमें। अरे उसकी बात नहीं कर रहा दीपक, एग्री, वो तो डिस्गाइज नहीं कर सकता। क्वेश्चन इज नॉट अबाउट कि बजाज ने कितना बोरो किया, क्वेश्चन इज बजाज ऑटो ने जितना डेट लिया है, इज दैट डेट इक्विटी रेशियो उसकी फाइनेंशियल में उसका डेट होगा, नो डाउट वो गलत होना नहीं चाहिए, ऑडिटेड नंबर होगा, इक्विटी करेक्ट नंबर होगा। तो बजाज ऑटो का डेट इक्विटी रेशियो आपको मिल गया, लेट्स अज्यूम दैट कम्स आउट टू 1.8/1। अब क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि 1.8/1 उस इंडस्ट्री में अच्छा है कि बुरा है, ये कहां से निकाला? पीयर ग्रुप का भी अवेलेबल होगा हमारे पास। आपको आप ऐसे मान, यू टेकन बजाज, यू टेकन टीवीएस का भी फाइनेंशियल होगा, और वही तो बोल रहा हूँ आपको, आप हीरो का भी फाइनेंशियल्स होगा। आप सुनो पूरी बात, कितने कंपनी का कैलकुलेट करोगे अलग अलग जाके? आप 10 कंपनी 5 कंपनी ऐसे, अब आप जब करने बैठोगे आपको बजाज ऑटो की आपकी कंपनी, हमने बजाज ऑटो का निकाल लिया, अब आपको इंडस्ट्री का चाहिए। आप मुझे बताओ कितने प्लेयर्स लोगे? 4, 3, 2, 10, 100, कितने प्लेयर्स लोगे? जो जिनका लार्जली मार्केट शेयर है उसमें, फॉर एग्जांपल इन मारुति, हुंडई एंड नहीं, मत जाओ उधर, मत जाओ। अब आपने बोला कि आप लोगे, ये मैनुअल कैलकुलेशन हो गई, अब इसमें सब्जेक्टिविटी आ गई। आप कहोगे मैं तो जिस भी प्लेयर का मार्केट शेयर 30% से ऊपर है वो लूंगा, तो आप वो ले लो और कैलकुलेट कर लो। जो पेड डेटाबेसेस होते हैं वो आपको ये कैलकुलेशन को बहुत रिफाइन करके दे देते हैं, वो आपको उस इंडस्ट्री का सिर्फ टॉप 3 टॉप 4 का नहीं देंगे, एक्चुअल जिसमें कुछ 20, 25, 50 प्लेयर्स होंगे उसका एवरेज निकाल के दे देंगे। and we have to believe that data. मत बिलीव करो आप, आपको किसने कहा? आपको फोर्स नहीं कर रहा है। जब आप उस डेटा को यूज करते हैं, what the authenticity of those data,
सब कुछ होता है उसमें, उसमें ब्रेकअप होता है कहाँ से क्या हो रहा है। जब आप ओवर द इयर्स एज यूज करते हो ना उसको, तो आपको कंफर्ट आता है दीपक। आप जब ओवर द इयर्स उस डेटा को यूज, और आपके पास कोई एक सॉफ्टवेयर नहीं होता, आपके पास 4 से 5 डेटा बेसिस का एक्सेस होता है, ठीक है। और गूगल है, आप छोड़ो ना, आप गूगल पे जाओ, जो आपको गूगल से मिलेगा डेटा, मान लो आपको गूगल पे एक रिसर्च रिपोर्ट मिल जाता है जो बोलता है इंडस्ट्री का एवरेज ये है, आपके पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है, आपको नहीं बिलीव करना, मत करो, आप खुद कैलकुलेट करो। तो आई एम नो वे सेइंग कि आप खुद कैलकुलेट मत करो। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, जब आप खुद कैलकुलेट करने जाओगे आपका टाइम ज्यादा लगता है, आपको डेटा निकालने में जो जो एनर्जी या रिसोर्सेज स्पेंड करने पड़ते हैं वो ज्यादा लगता है, प्लस आपका जो यूनिवर्स है बहुत लिमिटेड हो जाता है। जब आप पीयर एनालिसिस जब एवरेज करने जाओगे तो आप कितने प्लेयर लोगे, 2 प्लेयर, 3 प्लेयर, 4 प्लेयर, 5, इससे ज्यादा आप मैनुअली कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, ठीक है। बट ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं या जो डेटाबेसेस होते हैं, ये आपको 20-22 प्लेयर तक एवरेज निकाल के दे देते हैं। आई सीन डेटाबेसेस जो हम लोग यूज करते हैं, जिसमें वो मुझे अलाउ करता है मुझे चूज करने के लिए कितने प्लेयर कौन कौन से। जैसे अगर मैंने ऑटो इंडस्ट्री सेलेक्ट किया, ऑटो इंडस्ट्री मैंने कहा कि मुझे 2 व्हीलर सेगमेंट चाहिए, बजाज ऑटो इज इन 2 व्हीलर सेगमेंट और 3 व्हीलर सेगमेंट, मुझे ये चाहिए, तो मुझे वो पूरी ड्रॉप डाउन दे देता है, ऑल लिस्टेड कंपनी इन इंडिया, ऑल लिस्टेड कंपनी इन इंडिया, ऑल, चाहे उसका मार्केट शेयर 0.01% हो, ऑल लिस्टेड कंपनी इंडिया, वो पूरा ड्रॉप डाउन रहता है जिसमें वो 300-400 कंपनीज होती हैं, और उसमें से बोलता है एक होता है ऑल। मैं अगर एक ऑल सिलेक्ट करूंगा तो उन 300-400 कंपनीज का एवरेज निकाल के मुझे दे देगा। दैट इज वन ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन कहता है अगर आपको इसमें से कोई भी 10 कंपनी चूज करनी है, कोई भी 50 कंपनी चूज करनी है, आप पिक एंड चूज करते हो, you do some number crunching and click some buttons on the screen and it generates within few seconds. So that is where these softwares are doing means they are just torturing the data to reveal the truth. No, I don't believe that. It's not reveal the truth hai. It's just कि it is helping you to refine and systemic your data query in a much more refined and systemic और focused way, क्योंकि वो डेटा को शायद निकालने में अदरवाइज गूगल से शायद बहुत टाइम लग जाए, जो इसके थ्रू शायद 5 मिनट में हो जाए। सेकंड और बहुत क्वेश्चन सारा इंफॉर्मेशन ऐसा भी देखा गूगल पे मिलता ही नहीं है। देखो टाइमिंग इंपॉर्टेंट है ना, आप समझो बात को, टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। तुम्हें मार्च क्वार्टर एंडिंग मार्च का डेटा चाहिए, ठीक है, इंडस्ट्री का। अभी तुम्हें लगता है गूगल में अवेलेबल होगा? नहीं होगा। आप पिछले साल का शायद गूगल दिसंबर का है या सितंबर का है, the only thing is that you are how you are presenting, how you are analyzing and how you are convincing because this presentation what we have means what I've concluded that somebody is, you have to convince somebody to invest or not to invest in the company. That is the whole presentation we have to give. Correct. It has nothing to do with उसमें क्या चल रहा है and all that. The investor is in front of you and you have to convince him not to invest or to invest. Why? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। So the way I look at these is when I go and make these pitch book presentation or submit these reports is what's my view on the company. It's not about to convince सामने वाला को बाय करना है नहीं करना, बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है, मुझे लगता है कंपनी बाय करना चाहिए, तब भी सामने वाले को लगता है नहीं बाय करनी चाहिए, उसके रिस्क एपेटाइट में फॉल नहीं करती है। दैट्स ओके। माय एज ए एनालिस्ट आपका रोल ये है कि आप अपनी फेयर ओपिनियन बताएं। Exactly. और वो फेयर ओपिनियन से पहले आपने अपना ड्यू डिलिजेंस प्रॉपर किया है कि नहीं किया। ये 2 रूल्स हैं जो मैं ऑलवेज फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। And when I put my hand on my heart, have my team or have I done a justice to this research? Can I say yes with confidence? Second, if yes, what's my or my team opinion on this stock or this script? If we were done with this piece, then we say, okay, we are confident to handle or address any query that an investor or a client will create for us. This is the thought process that we drive for most of the research.
हाँ, कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स होती हैं जिसमें बहुत अलग तरीके से होता है, बट वो छोड़ दो, वो आई थिंक दैट्स नॉट समथिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज वो there's always a debate whether those are very best methods or ethical ways of doing this, but वो छोड़ दो, but from a program perspective, this is what you should focus. It has to be, because अगर आप fair opinion one time नहीं दोगे, the second time nobody will come to you. Yeah, it's a trust and relationship business. जो आप बोल रहे थे उसकी authenticity क्या है? Authenticity किसी की नहीं है, दीपक. It's when you start speaking to people, when you start making money for your clients, the relationship builds. ठीक है, trust builds. आपको बात करने के तरीके से उसकी क्वेरी को एड्रेस, आप सोचो ना, आप एक सीएफओ के पास जाते हो एंड वो आप उसको प्रेजेंटेशन बनाना करना शुरू करते हो, 15 मिनट के बाद वो क्वेश्चन पूछता है, आप कहते हो आई विल गेट बैक टू यू, द गेम इज लॉस्ट. Whether you get back to him or whether you don't get back to him, he will never give you a check. So you cannot afford to tell a CFO or a global head that I will get back to you as a research analyst. You need to know everything about that company which you're presenting. So it's difficult, but of course that's the reason why these research analysts are paid heavily when it comes to the compensation part. हाँ जी, कुछ और क्वेरी, डाउट फ्रॉम a presentation perspective? ये कोलगेट का जो टेम्पलेट है प्लीज देख लेना, आपका जो LMS है उस पर भी अवेलेबल है ये. दिस शुड बी अ वेरी हैंडी व्हेन आप अपनी प्रेजेंटेशन को एक स्ट्रक्चर फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, तो ये काफी हेल्प करेगा आपको. हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछिए. नो? Last class, I have one question for which you have told me that park that question, unlevering and levering of beta. So if nothing is planned for today onwards for. हाँ नहीं, मैं बता देता हूँ. Anyways, I'm not, actually I was having a lot of pain in the back in the morning, so I decided to give a shot to a class, but I'm realizing I'm not finding it very comfortable to sit also. Okay, then. So no, but we can connect tomorrow. No, but मैं लीवर अनबिलीवर बीटा वो बता देता हूँ. I don't know, अगर वो पार्क किया था तो ठीक नहीं है ज्यादा डिले करना. तो हाँ, बीटा हमने कहा है. So what is beta? Beta represents a systemic risk. So if a beta of a company is 0.7, what does that mean? That means that if there is a 1% movement in the market means Nifty or Sensex, whichever market benchmark you're taking, then this 1% movement creates a 0.7 times impact in the respective stock. That is called as beta. Deepak, are you with me till this point? Okay, beta is okay. Now coming to levered and unlevered beta. So जो unlevered beta होता है वो क्या होता है कि इस बीटा में से आपने डेट का कंपोनेंट या डेट का इम्पैक्ट को हटा दिया, which means you're calculating a beta assuming that company is a debt free company. उसको unlevered beta बोलते हैं, क्योंकि
जो आपके ये स्टॉक पे इम्पैक्ट आता है, जो वोलेटिलिटी है, जैसे देखो ये क्या है, ये रिस्क है, एक रिस्क का कंपोजिशन है। एक स्टॉक पे कितना रिस्क इम्पैक्ट क्रिएट करता है वो बीटा मेजर करता है, और वो रिस्क बहुत सारे वेरिएबल से आता है। इसमें एक एक फाइनेंशियल लिवरेज है, जो डेट ऑब्लिगेशन होती है उसका भी रिस्क होता है। तो मैं उस रिस्क को हटा के अगर असेस करना चाहता हूँ तो दैट इज कॉल्ड एज अनलीवर्ड बीटा। अगर मैं उस रिस्क को भी कंसिडर करके रखना चाहता हूँ दैट इज कॉल्ड लीवर्ड बीटा। जो मार्केट में यूज होता है और आपको जो गिवन होता है वो ऑलवेज लीवर्ड बीटा होता है, बिकॉज दैट इज अ मच मोर बेटर और ट्रू indicator from a CAPM perspective. That's okay. But when ये we are difference. calculating unlevered beta, Hmm. so we are netting off the debt component out of that, and it's purely the the beta for equity. Yeah, beta for the company, assuming companies are debt free, which means yes, सिर्फ equity capital में सारा equity है, तो वो beta को unlevered beta. What it signifies that this if we'll calculate the cost of equity, cost of capital through CAPM model through unlevered beta, what it signifies, what it will give the insight of. So it shows that if tomorrow, yeah, today, if you make the company debt free, what would be your impact on the stock, or what would be your expected cost of it? So it gives you two ways. First, आप अगर इन्वेस्टर हो और आप कहते हो कि नहीं भैया मेरे को कंपनी में कोई डेट नहीं होना चाहिए, तब मेरे को कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट करना है, तो वो मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अनलीवर्ड बीटा से। और अगर एक कंपनी है, आप इन्वेस्टर, आप कंफर्टेबल हो कि हाँ मैं तो डेट वाली कंपनी में भी इक्विटी में लगाने को रेडी हूँ, तो आप अपने लीवर्ड बीटा से जाते हो। Okay, we can say that the expectation, if the company is debt free, the expectation of the equity holder should be at least this much, or the cost of equity should be at least. करेक्ट। I mean, theoretically. रियल वर्ल्ड में जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हो, आपके पास कोई चॉइस नहीं होती डिसाइड करने के लिए कि वो डेट फ्री है कि नहीं। Actually, real world CAPM is not the correct model to use. हाँ ठीक है, बट आई हैव टू स्टार्ट समवेयर, करेक्ट। सो केपीएम से स्टार्टिंग पॉइंट केपीएम से ही होता है रियल वर्ल्ड में भी। हाँ, उसकी अपनी रिलेशंस है, ठीक है, जो हमने डिस्कस करी थी। आई एग्री विद यू कि वो केपीएम जो है रियल वर्ल्ड में पूरी 100% पिक्चर नहीं दिखाता, बट मेरे को बेस तो चाहिए ना कहीं से स्टार्ट करने, तो वहां से स्टार्टिंग पॉइंट तो वहीं से होता है, ठीक है। तो हाँ, ये बीटा अनलीवर्ड बीटा में और कोई डाउट? So if in the peer group, if we'll evaluate such a cost of equity, that what we can derive if it is coming the same, or it's in one of the companies coming as less and others are coming high, what we can derive out of that? For the beta? That means for cost of equity and levering the beta, and we'll evaluate that now. If all the companies with also the peer group should be debt free, considering, then and our company is having a less cost of equity as compared to others. So what we can derive out of that? That as an investor point of view, that अगर अनलीवर्ड बीटा से आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी कम है vis-a-vis अदर पीयर्स इन द इंडस्ट्री, और उनका भी आपने अनलीवर्ड बीटा लिया है, तो व्हाट डज इट मीन? इट एज एन इन्वेस्टर इट वुड मीन कपल ऑफ थिंग्स फॉर मी। फर्स्ट, कंपनी का जो बिजनेस है, कोर बिजनेस है, दैट इज लेस रिस्की, पॉइंट नंबर 1, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, जो वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है, ये जो कॉम्पनसेशन मार्केट या जो प्रीमियम मार्केट में अदर प्लेयर्स या अदर इन्वेस्टर्स चार्ज कर रहे हैं फॉर दिस बिजनेस इज लोअर देन द प्रीमियम दैट दे आर चार्जिंग फॉर द अदर बिजनेसेस। थर्ड, लोगों को ज्यादा भरोसा है इस कंपनी पे vis-a-vis अदर कंपनी, इसलिए प्रीमियम कम चार्ज कर रहे हैं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर कम आ रहा है वो भी अनलीवर्ड बीटा पे, तो इसका मतलब क्या कि मार्केट प्रीमियम कम चार्ज हो रहा है इस कंपनी पे।
रिस्क फ्री तो ऑलमोस्ट हर कंपनी का सेम ही होना चाहिए लगभग, और होगा भी तो बहुत छोटा बेसिस पॉइंट पर डिफरेंस होगा, ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता रिस्क फ्री में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंपनी जीसेक या एसबीआई के एफडी रेट्स पे खेलती हैं। सो जो 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 डिफरेंशिएटिंग फैक्टर होता है वो आपका मार्केट प्रीमियम होता है। तो इसलिए ये तीन चार एक तरीके होंगे इन्वेस्टर को रिएक्ट करने के, अगर अगर अनलीवर्ड बीटा आपकी कंपनी का या पर्टिकुलर कंपनी का लो है vis-a-vis द अदर पीयर्स। ठीक है, और कुछ दीपक लीवर्ड अनलीवर्ड बीटा में? If we can say that less risky is on a stable growth path, or more risky is on other phase of the Yeah. So growth. so less risky would mean stable, which means बहुत प्रॉफिट भी कमा के नहीं देगा, बहुत लॉस भी कमाने का चांस नहीं है। हाई रिस्की मीन्स एग्रेसिव है, ऊपर भी तेजी से जाएगा, नीचे भी तेजी से जाएगा। Means maturity phase, we can say that if it is cost of equity is less, then we can say that companies on maturity phase, not Correct. like example is SBI. करेक्ट। और जो दूसरे वाले हैं वो इंट्रोडक्शन फेज पे हैं, तो हो सकता है डूब जाए और हो सकता है ग्रो भी कर जाए। Okay. क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है, इसलिए इन्वेस्टर प्रीमियम ज्यादा चार्ज कर रहा है, और इसलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी उनका ज्यादा आ जाता है। बट एक स्टेबल कंपनी है लाइक एसबीआई, और एसबीआई में आप आज पैसा लगा लो इक्विटी मार्केट में, आपको पता है ये स्टॉक जहां है उसके आसपास ही धीरे 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 बढ़ने वाला है, आपको बहुत सिग्निफिकेंट रिटर्न नहीं देने वाला प्लस और माइनस करके। कि क्यों? बिकॉज वो काफी मेच्योर एक स्टेबलाइज कंपनी के फॉर्म में। सो एंड एसबीआई बहुत कोई ड्रास्टिक नहीं भागता, दे विल नॉट डू इनोवेशंस इन द मार्केट, दे विल नॉट डू थिंग्स लाइक दिस वो एकदम से स्टॉक 50% ऊपर भाग जाएगा या नीचे गिर जाएगा। इट्स काइंड ऑफ स्टेबल काइंड ऑफ इन रिटर्न। तो जो एग्जांपल आप ले वो इसमें फिट कर जाएगा। वीजा भी सम आप एक स्टार्टअप कंपनी ले लो या सम एग्रेसिव कंपनी ले लो, वो बहुत ऊपर नीचे खेलते रहे। ठीक है, कोई और डाउट इसमें लीवर्ड अनलीवर्ड में? Not now. ठीक है चलिए, मैं को इतना ही रखना पड़ेगा। आई एम फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू सेट। मेरे को पेन एकदम से काफी ज्यादा होना शुरू हो गया, बट ठीक है। सो विल रैप दिस अप। Okay. ठीक है, बाकी का नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, Okay. चलिए, थैंक्स, बाय।